and secondary stored grain. So already I have told that primary stored grain, again they are two types, that is internal feeder and external feeder, but they are primary insects only. Okay, so what is primary and secondary insect we have discussed in the first class. Next we will discuss the name of the primary insect, identification, then host plant, then damage symptom. So first we'll discuss about the internal primary feeder. So what are the insects coming under the internal primary feeder, that also you have to remember, because sometime in question or in MCQ they may ask that they will give 4 option and they will say which one is the primary internal feeder. So you have to remember primary internal feeder, primary external feeder, both this name you have to the insect name you have to remember. Okay, so first we'll discuss about the rice weevil. Scientific name is Setophilus oryzae, family is Curculionidae, and order is Coleoptera. So we know this is one weevil. So as it is weevil means they will be having snout. This is the snout. Okay, so it is the major identification character, and another major identification character, on their wings you will find 4 yellowish spot on their wings. Okay, so next we'll see distribution. So worldwide it is distributed. In India also you will find more this insect damage. Then they are very destructive pest, and also they will cause damage to the rice field as well as to the storage. Then these are the host range. Apart from the rice, they will also attack on sorghum, barley, wheat and maize. So next we will see the identification. As I already told about the identification character of this weevil, that is they will be having one snout or rostrum, and they will be having 4 spot, that is reddish or yellowish spot on their elytra. Okay, so this is the major identification character. These two you can write in exam. Then larva, as you can see here, they are very plumpy and fleshy. These larvae are very plumpy and fleshy and legless creature. Next we'll see the damage symptom. So both the adult and grub will damage. You have to remember this, means in which insect they are causing like only grub causing damage or only adult, or both grub and adult causing damage, that you have to remember. So rice weevil, both the adults and grubs they will cause the damage. And what kind of damage they will do? They will cause a circular hole on the grain. This thing you have to remember. And another thing, see, as they are causing the circular hole on the grain, so they will feed on the kernel, and they will शिफ्ट मीन्स ट्रांसफ़र दिस कर्नेल फॉर्म इनटू पाउडर फॉर्म. कर्नेल को वो खा के क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो आप अगर सपोज़ यहाँ पर एक जार है और आप यहाँ पर राइस या फिर सोरघुम कुछ भी रखे हो स्टोर करके, और वहाँ पर सपोज़ राइस भी अटैक किया है, तो आप लोगों को नीचे पाउडर भी दिखेगा, इसी सीड का कर्नेल का पाउडर दिखेगा नीचे. ओके, सो बाय लाइक दिस ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट द राइस weevil is attacked to the stored product. Okay, so next you see these are the rice weevil, very small, as you can see it is smaller than the size of rice also. Then lesser grain borer. So see, as the name it is given borer, don't confuse in between Lepidoptera and Coleoptera. Always remember, देखो जैसे हम लोग बोरर मतलब जैसे येलो स्टेम बोरर और अर्ली शूट बोरर, टॉप शूट बोरर, ये जो बोरर होता है तो वो बेसिकली लेपिडोप्टेरा से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक लेसर ग्रेन बोरर है जो कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर का है. ओके, देन राइजोपरथा डोमिनिका इज द राइजोपरथा डोमिनिका इज द साइंटिफिक नेम, Bostrichidae is the family. So next we will see the distribution, that is it is also distributed worldwide, so it is not necessary. Then host range you see, apart from the rice, sorghum, barley, wheat, maize, millet and other stored dried potatoes, corn flour, biscuit, pumpkin seed, tamarind, these are the product they will attack. Then how you will identify? So first thing about the larva you have to remember, only first and second instar larva you can see outside the grain, but at the third instar larva they will enter inside the grain like this. The third instar larva they will be enter inside the grain. So क्या होता है ना, हमें ये इंसेक्ट का लार्वा ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है,
क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं तो बाहर दिखाई नहीं देगा, तो आपको सीड को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने से ही आपको दिखेगा। और जो ब्रेक करना पड़ता है सीड को, तब एक प्रॉब्लम है कि देर इज ए चांस दैट दिस लार्वा विल ऑल्सो गेट किल्ड। सो आपको मतलब बहुत एक्सपर्ट होने से ही आप इसे ब्रेक कर सकते हो प्रैक्टिस करके, लेकिन ये एक बहुत डिमेरिट है क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं थर्ड इंस्टार में, फिर प्यूपेशन इसके अंदर ही होता है, देन द एडल्ट विल कम आउट। So this is one most important larval character. And another thing, the larva, they are dirty white, light brown head and constricted elongated body. Next we'll see about the adult. देखो adult में क्या याद रखना है, इनका जो हेड है वो डिफ्लेक्स्ड है, नीचे देखो हेड नीचे है, लेकिन आप अगर ऐसे डोर्सल व्यू देखोगे तो ये थोरासिक रीजन जो कि प्रोनोटम है, सो प्रोनोटम आपको दिखेगा। सो प्रोनोटम क्या हुआ है, जैसे कि हुड जैसा फॉर्म किए, जैसे अगर ये एक इंसान है और इसने जैकेट पहना है और सर के ऊपर एक हुड दिया है, हुड मतलब क्या है, हुडी, जो जैकेट का हुडी रहता है। सो यहाँ पर ये प्रोनोटम ऐसे ही हुडेड मतलब हुडी जैसा काम करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कवर्ड विथ हुड शेप प्रोनोटम। सो देखो क्या है इसका मेजर कैरेक्टर, अगर लिखना आएगा तो लिखना कि हेड इज डिफ्लेक्स डाउनवर्ड्स, कलर इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड द हेड इज कवर्ड विथ द हुड शेप प्रोनोटम। इतना आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट डैमेज सिम्टम, हियर ऑल्सो बोथ द grub and adult will cause the damage, and here they will make the irregular holes. So in case of the rice weevil they were making circular hole, but in case of the lesser grain borer they will make irregular holes. Okay, so they can also damage the wooden structure. So यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और भी है, आपको याद रखना है, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि कौन सा इंसेक्ट है जो जिसको कि स्टोर करने के बाद वो स्टोरेज स्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं। सो द आंसर इज लेसर ग्रेन बोरर। नेक्स्ट विल सी पल्स बीटल, साइंटिफिक नेम इज Callosobrochus chinensis, family is Chrysomelidae, order is Coleoptera. So how we will identify this adult insect? See here, male insect they will be having pectinate type of antenna and female insect they will be having serrate type of antenna. ये एक मेजर मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेल फीमेल में। और एक क्या चीज़ है जो एडल्ट है, so you can see here their abdomen is visible, this is the abdomen portion, and their antenna they are not covering the abdomen. ये अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पल्स बीटल है, क्योंकि इनका जो इलाइट्रा है या फिर विंग्स है that will not cover the abdomen, and on the wings also you will find like this spot, as well as near the abdomen also the portion which is visible, जो abdomen दिख रहा है बाहर से उसमें भी आपको दो ब्लैक स्पॉट ऐसे दिखेंगे और बीच में वाइट कलर दिखेगा। सो दिस इज़ द मेजर कैरेक्टर। एंड और एक बात, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेन एकदम पल्स बीटल से अटैक किया है, तो सपोज़ यहाँ पर चिकपी है या फिर मूंग दाल है, आपको उसके सरफेस पे वाइट वाइट छोटा छोटा एग दिखेगा। सो बाय सीइंग दैट ऑल्सो यू कैन से पल्स बीटल इज अटैक्ड। ओके, next we'll see their host range. So here also you have to remember that this pulse beetle they will attack the pulses both in the field condition as well as in the storage. So identification of larva, they are whitish light brown and their head is, see, the body is white light brown in color, sorry whitish in color, whereas the head is brown in color. Then adult, already I have said this thing. The damage symptom, both the adult and grub will attack, small hole they will make, and that is entry hole and exit hole. And I told this whitish egg, you can see, ये देखो यहाँ पर पूरा छोटा छोटा white egg दिख रहा है इस पिक्चर में, यहाँ पर भी।
Next we'll see tobacco beetle. So the scientific name is Lesioderma sericorne. It belongs to the family Anobidae. Order is Coleoptera. इसको हम सिगरेट बीटल भी कहते हैं क्योंकि ये सिगरेट या फिर टबाको कुछ भी स्टोर करते हो तो वहाँ पर मोस्टली ये अटैक करते हैं. So you can see irregular galleries they will make on the cigarette. So host range are tobacco, turmeric, ginger and chilies. तो या ऐसा नहीं है कि सिर्फ टबाको पे, टर्मेरिक, जिंजर, चिली में भी दे विल अटैक. सो हाउ विल आइडेंटिफाई दिस. देखो इसका एक इम्पोर्टेंट थिंग है, हमको जो लेसर ग्रेन बोरोर था वो कैसा दिख रहा था, ऐसे, बिकॉज ओनली देयर हेड पोर्शन वाज डिफ्लेक्स्ड. लेकिन यहाँ पर क्या है, सिगरेट बीटल में ऐसा हम्प शेप है देखो, क्योंकि हेड के साथ थोरासिक पोर्शन भी बेंड हुआ है, ये याद रखो. ओके, सो देखो एडल्ट दे आर स्मॉल ओवल 2 to 3 mm लॉन्ग लाइट ब्राउन एंड राउंड बीटल. सो द एडल्ट्स दे आर वेरी स्मॉल 2 to 3 mm लॉन्ग. ये मत याद रखो, ये वाला याद रखो, thorax and head bent downward, then gives insect a humped appearance. Then elytra have minute hairs on them and are not striated. तो यहाँ पर देखो जो इलाइट्रा है वो इलाइट्रा में माइन्यूट हेयर्स है. इलाइट्रा मतलब क्या है, विंग्स ऑफ द बीटल. सो ऑन दैट यू विल फाइंड द माइन्यूट हेयर्स. और नॉट स्ट्राइटेड का मतलब है पूरा प्लेन है तो उसके ऊपर छोटा छोटा हेयर दिखेगा. देन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल हेयर. सो यहाँ पर भी आपको अगर मेल फीमेल को आइडेंटिफिकेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है कौन सा मेल फीमेल है, तो आप उसका साइज देख के बता सकते हो. सो सिलिंड्रिकल गैलरीज दे विल मेक हेयर. ओनली ग्रब विल अटैक, रिमेंबर दिस, ओनली ग्रब विल अटैक. नेक्स्ट विल सी द ड्रग स्टोर बीटल, स्टेगोबियम पैनिकम. एनोबिडे सेम जो सिगरेट बीटल का फैमिली है वो भी इसका ही सेम फैमिली है. सो देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, सेम ये भी एकदम it is exactly they are similar to the cigarette beetle only, but the differentiation is in case of cigarette beetle on the elytra only minute hair you will find, right, एंड पूरा इलाइट्रा प्लेन रहेगा. लेकिन स्टेगोबियम में क्या होगा, इलाइट्रा के ऊपर आपको स्ट्राइटेड दिखेगा, दैट मीन्स ऐसा रिज्ड फ्यूरो रफ रफ दिखेगा, स्ट्रक्चर प्लेन नहीं रहेगा. सो यही है डिफरेंस. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल ऑल्सो अटैक ऑन ड्राई वेजिटेबल, जिंजर, टर्मेरिक, कोरिएंडर. ओके, एंड डैमेज सिम्टम इज सर्कुलर पिन हेडेड साइज होल करेंगे और ये वाला जो है उसका होस्ट है. नेक्स्ट विल सी एंगुमोइस ग्रेन मॉथ. द साइंटिफिक नेम इज सिटोट्रोगा सीरियलल्ला. गैलेचिडे इज द फैमिली एंड लेपिडोप्टेरा. सो देखो ये भी बहुत स्मॉल इंसेक्ट है इसीलिए इनका फैमिली भी गैलेचिडे है. हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिंक बॉलवर्म का फैमिली गैलेचिडे. सो इसको भी आप याद रखो, एंगुमोइस ग्रेन मॉथ, द फैमिली इज गैलेचिडे. एंड और एक थिंग आपको इससे कैसे पता चलेगा कि ये एंगुमोइस ग्रेन मॉथ है, इसका कलर देख के. इसका जो कलर है एकदम राइस का जो स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ राइस का जो स्ट्रॉ है उसका जैसा सेम कलर है ये. नेक्स्ट विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन. these are the area where it is distributed, and in India mostly you will find in the mountain areas where, and also you will find in that area where the climate condition is little bit mild. Then host range, rice, sorghum, barley, wheat, maize, these are the host range. Now identification character of the adult. So you see their body is yellow, see adult body is brown and straw colored, and one more thing they are having narrow pointed wings. तो जो wings है ये जाके ऐसे pointed हुआ है, देखो, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स बोथ. ये वाला जो कोस्टल है फिर ये ऐसे हुआ है पॉइंटेड. तो इसके नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर आपको फ्रिंज्ड दिखेगा, एंड जो हाइंड विंग्स है वो कम्प्लीटली ऐसे फ्रिंज्ड दिखेगा. ओके, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर. एंड लार्वा दे आर वाइट बॉडी, येलो ब्राउन हेड. नेक्स्ट विल सी द डैमेज सिम्टम ऑफ दिस एंगुमोइस मॉथ. देखो ये कितना छोटा मॉथ है, देखो ये सीड के ऊपर देखो बहुत ही छोटा दिख रहा है. सो ओनली लार्वा दे विल कॉज द डैमेज, एडल्ट्स आर हार्मलेस. सो कैसे वो लोग डैमेज करते हैं,
अगर सपोज इफ दे आर फीडिंग ऑन ए ग्रेन देन दे विल कंप्लीटली फीड ऑन दैट ग्रेन, मीन्स दे विल हॉलो दैट ग्रेन। ऊपर का सरफेस सिर्फ रहेगा, ग्रेन का कवर रहेगा, लेकिन अंदर से पूरा हॉलो कर देंगे। इट अटैक्स बोथ इन फील्ड एंड स्टोर। सो इन स्टोर बल्क ग्रेन, सपोज देखो अगर ऐसे स्टोर किए हो बल्क की, ये जो ग्रेन है अगर आप बल्क में स्टोर किए हो तो इसका एक खासियत ये है इस एंगुमोइस ग्रेन मॉथ का, दे विल ओनली फीड ऑन द अपर 20 सेंटीमीटर डेप्थ। सो ऊपर से 30 नॉट 20, ऊपर से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही वो फीड करेंगे ऐसे। सो अगर सपोज हीप में नहीं रखे हो, अगर ये यहाँ पर एक कंटेनर है, इफ यू आर कीपिंग इन दैट कंटेनर ऑल्सो ओनली द अपर 30 सेंटीमीटर डेप्थ दे कैन फीड एंड दे विल फीड ओनली दैट, below portion they cannot reach and they will not feed. Okay, so like this you can remember this. The infested grains are hollowed out by the larva and filled with excreta. Webbing, you can find the webbing on the grains also. Then it feed inside and remain the single grain only. So the larva they will feed inside and they will remain in that grain only. Okay. Next we will see the almond moth. Almond moth is also known as fig moth, or also you can say as currant moth. Okay, sometime they will ask which one is the currant moth. So this is known as currant moth. So about the almond moth, the scientific name is Euphestia cautela, family is Pyralidae, order is Lepidoptera. So और एक कौन सा इंसेक्ट का फैमिली पायरालिडे है बताओ? येलो स्टेम बोरर. Okay, see the identification character, that is first eggs. So they will lay the egg on the grain, and if you are using the sampling tube then you can find their egg. Then larva, they are grayish white color, hairy with dark brown head. So देखो यहाँ पर क्या होता है, जो लार्वा है इसका हेड जो है वो डार्क ब्राउन है और ईच सेगमेंट के में आपको हेयर दिखेगा इसे. और क्या है, just behind the head on the larva you will find 2 dark spot and also on each segment you will find the dark spot. This is almond moth larva. Then you will see pupa. जब वो प्यूपा बनाएंगे तब आपको क्या दिखेगा, प्यूपा बनाते टाइम वो सिल्कन थ्रेड यूज़ करते हैं. सो वो सिल्कन थ्रेड से ककून बनाते हैं, फिर प्यूपेशन करते हैं अंदर जाके. नेक्स्ट यू सी the adult, they are dirty white to grayish in color with distinct black band. Next, the damage symptom. So how they will cause the damage? Larva feed on the germ portion leaving the rest of the kernel undamaged. So जो कर्नेल होता है उसको वो लार्वा फीड नहीं करते, ओनली जर्मिनल पोर्शन को वो अटैक करते हैं. सपोज आप बल्क में रखे हो, जैसे कि हम एंगुइसमस ग्रेन मॉथ में डिस्कस किए थे कि ओनली 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही वो फीड करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, ओनली पेरिफेरल रीजन दे विल फीड, नॉट एनी डेप्थ, नॉट दे आर मेंशन, बट ओनली यू हैव टू राइट दैट देयर डैमेज और इन्फेस्टेशन इज लिमिटेड टू द पेरिफेरल टॉप लेयर्स ओनली. हियर ऑल्सो यू विल फाइंड द वेबिंग. Next, what is the major problem with this almond moth is that you have to remember, they will क्लॉग द मिल्स, मशीन ऑफ द मिल्स. तो जो राइस मिल होते हैं वहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन रहता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अगर आलमंड मॉथ अटैक किए हैं तो वो मशीन को क्लॉग कर देते, इतना वेबिंग करते हैं कि मशीन भी क्लॉग हो जाता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पोटैटो ट्यूबर मॉथ, दैट इज थोरेमिया ओपेरिकुलेला. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द गेलेचिडे लेपिडोप्टेरा. सो ये बोथ फील्ड एंड स्टोरेज कंडीशन में अटैक करते हैं, और जो ओनली दिस बोरर विल अटैक, नॉट द एडल्ट. ओके, सो दे विल बोट द पोटैटोज and the adult, they are very small narrow fringed wings. Fore wings are grey brown and dark spot and hind wings are dirty white. So fore wings में आपको dark spot भी दिखेगा. Next we'll discuss about the groundnut bruchid, that is Caryodon ceratus, family is Chrysomelidae, order is Coleoptera. So देखो ये इंसेक्ट आप अगर ऐसे देख रहे हो तो ही इसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर मिल जाएगा. फर्स्ट थिंग इज इनका आंखें देखो, ये दीज आर द आइज. सो अबाउट द आइज, दे हैव लार्ज प्रोमिनेंट आइज लिखना है. नेक्स्ट देखो ये लेग थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है,
सो हमारा जो लेग का क्या क्या पार्ट है, कोक्सा, फेम्यूर, ट्रोकांटर। सो ये जो पार्ट है, इसका जो फेम्यूर पार्ट है वो बहुत बड़ा है। देखो फेम्यूर पार्ट एनलार्ज होके इतना बड़ा दिख रहा है कि आपको बाहर से ही ये विजिबल है। तो जो फेम्यूर पोर्शन है दैट इज़ वेरी बिग, दैट इज़ swollen and you will find the combs on that femur। तो जो फेम्यूर पोर्शन है वहाँ पर ऐसे कोम भी आपको दिखेगा, स्पाइन। ओके, सो ये स्पाइन क्लियरली विजिबल होगा। आप अगर आप देखोगे तो ही पता चलेगा, लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई। और हाइंड फेम्यूर, हाइंड लेग में जो फेम्यूर है उसमें ही आपको ये दिखेगा, फोर लेग में नहीं है। ओके, हियर द ग्रब विल अटैक एंड दे विल मेक द राउंड होल। एंड वन मोर थिंग, राउंड होल। ओके, एंड हियर प्यूपेशन, प्यूपल केस जो है वो आपको बाहर दिखेगा। देखो एंट्री होल तो दिखता ही है, तो उसके साइड में आपको प्यूपल केस दिखेगा। सो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड नट दे विल ऑल्सो अटैक ऑन द टैमारिंड सीड। सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल प्राइमरी फीडर्स। थैंक यू।